Okay, so this is where the CFA Level 2 2026 journey begins. This is the first class. We are going to start with alternate investments, and within that we have a topic called hedge fund. All of you who are coming from CFA Level 1, you are aware of what hedge fund is. But I said aware of. You are aware of what hedge fund is, and over here we are going to go into the depths of hedge fund. Now the chapter is important from 2 points of view. This chapter, hedge fund strategies, was there in CFA Level 3 in 2024. Yeah, it was there in CFA Level 3. Then they brought it to CFA Level 2. You can understand, Level 3 stuff brought to CFA Level 2, and they did not cut portions out of it. They gave a respect to CFA Level 2 students, that is, yes, इनके पास भी पूरा capability है Level 3 का stuff समझने का. So this is CFA Level 3 stuff taught in CFA Level 2, hedge fund strategies. This is not about valuation, this is about strategies. Understood? It's from a fund manager's perspective. It is from a fund manager's perspective. Good. Now, I think there was a person called Alfred Jones, 1949, who started hedge fund for the first time. And you know something? This guy was a socialist and a journalist. So when people say na, that sir मैं CFA join करूँ क्या, मेरा commerce background नहीं है, it's a joke. People who are socialist and journalist, they come into the finance industry and do wonders because they come with a T-shaped skill. So he is the one who started long short. He will go long on stocks which are underpriced, go short on stocks which are overpriced on a fundamental basis. Had a marvelous performance, maybe for 1 decade or 2 decades. I am not aware too much of his story, but if you want to read कि उसने क्या returns earn किया था, I think the figures that I know, I was looking some days back, $8 million was what he started with, $8 million assets under management, and this was turned to $22 billion in around 16 years time. Can you calculate the CAGR? $8 million was turned into $22 billion assets under management, the growth rate of AUM. $8 million to $22 billion in 16 years time. Somebody must be calculating, I'm sure. You should do 8 plus minus PV, 22,000 FV, 16N, CPT I by Y. 8 million turned into 22 billion, if the figures are correct. It's 86.28%, Kailash is saying. Okay, somebody is saying 64%. I don't know, how can it be wrong? Rishabh is saying 6.5%. तो ऋषभ आपने सुना नहीं, मिलियन से बिलियन, 8 मिलियन से 22 बिलियन. ओके, तो कैल्सी में 8 प्लस माइनस पीवी, 22,000 एफवी, 16N एंड सीपीटी आई बाय वाई. माई फिगर्स कैन बी रॉन्ग कि नहीं सर 8 का 20 किया था, तो डोंट कैच माई कॉलर फॉर दैट. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट अ स्टुपेंडस ग्रोथ, बिकॉज किसी के पास अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो बिकॉज वो बढ़िया परफॉर्म करता है, इजंट इट? ठीक है ना. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू व्हाट इज द करेक्ट आंसर. लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे, विच आई एम कंफ्यूज्ड, उसका कोई सेंस ही नहीं है. आई जस्ट सेड इट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्टिंग दैट गाय Alfred Watt Jones. Okay, you can study. Now let me give you another inspiration. There was a guy who was from economics background. When he was a sophomore at Harvard, you know the meaning of sophomore? How many people know the meaning of sophomore? There was a guy who was in Harvard, I think 1987 or 88. He was a sophomore at that time. Anybody knowing the meaning of sophomore? जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट होते हैं ना, सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, ओके, उनको सोफोमोर बोलते हैं. आई थिंक सोफो मीन्स वाइज एंड मोर मीन्स फुलिश. सो दोज हु आर वाइज एंड फुलिश, they are wise because they are not a freshman, but they are foolish because they still have
to become junior and senior, whatever it is. तो ये what was his name? I think Ken Griffin. Ken Griffin was his name. तो वो हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर स्टूडेंट. ओके, फैमिली एंड फंड्स का पैसा लिया, फैमिली एंड फंड्स का पैसा, और हार्वर्ड में डॉम में बैठ के इंटरनेट कनेक्शन लगा के, ठीक है, he did hedge fund strategy over there. And after graduating, perhaps in the 1990s, he started this fund, which is one of the best funds in hedge fund, most respected, Citadel. Citadel is the fund started by this Griffin. I don't know the name exactly, Ken Griffin or whatever. And you know the strategy with which he started? Convertible bond arbitrage. Convertible bond arbitrage. सब याद कर लो convertible bond arbitrage क्या था. And when you are able to remember, तो ठीक से एक सिंगल लाइन में बताना. Convertible bond arbitrage. Citadel का फाउंडर जो स्टार्ट किया था हार्वर्ड में सेकेंड ईयर में. कितने सारे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. ओके, ही स्टार्टेड एट दैट टाइम, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का पैसा मैनेज करके. कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी. योर रिप्लाईज आर नॉट कमिंग, आई कांट वेट फर्दर. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज में वी बाय अ कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड वी सेल शेयर्स equivalent to the conversion ratio of the convertible bond. Yes, Shubh. We buy convertible bond, undervalued bond. कौन सा convertible bond? And we short the shares of the company equivalent to the conversion ratio based on the call option delta. ध्यान आ रहा है क्या level 1 का? We buy convertible bond and we sell shares. Convertible bond buy किए मतलब क्या हो गया? बॉन्ड बाई किए प्लस कॉल ऑप्शन बाई किए और साथ में शेयर्स क्या किए? सेल किए. बॉन्ड बाई किए, कॉल ऑप्शन बाई किए, वारंट है ना उसके साथ घुसा हुआ, एंड शेयर सेल किए. तो जो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर दिए. स्टॉक का प्राइस मूवमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिए. वी आर वांटिंग टू गेन फ्रॉम मिस प्राइसिंग. वी आर वांटिंग टू गेन फ्रॉम मिस प्राइसिंग. इट्स कॉल्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज. द लास्ट वर्ड इज आर्बिट्राज. Now why is it called arbitrage? Let's understand. अगर कोई कंपनी है स्टार्टअप टाइप्स और वो अगर बॉन्ड इशू करना चाहता है तो बॉन्ड इशू करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक के पास गया, जेपी मॉर्गन के पास. जेपी मॉर्गन बताया कि जो इंडस्ट्री का हाल है, जो रिस्क एवर्जन है मार्केट में चल रहा है, और जो कंपनी का खुद का हाल है, उसको देखते हुए the yield on the bond has to be 13%, 13, यूएस पे बोल रहा हूँ, 13% yield में इशू करना पड़ेगा, या से 17%, 17% yield देना पड़ेगा. That's the required rate of return by the investors. That's what investment bank JP Morgan told the company. The company said no, 17% तो हम लोग सह नहीं पाएंगे. We want to give only 5%. Is it possible to give 5%? Yes. Issue convertible bond in which the investors, although they suffer a lower coupon, but they will have the potential to enjoy the upside appreciation of the stock. They will have the scope of enjoying the upside potential of the stock. ठीक है, upside potential enjoy कर पाएंगे स्टॉक का. ये कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है जो सबको समझ में आता है. अब ये जो भी बॉन्ड इश्यू होता है, ये बॉन्ड तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स इशू करते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स या जो भी होते हैं, these investment banks, they want the issue to be undersubscribed or oversubscribed. जो इन्वेस्टमेंट बैंक इशू कर रहा है वो चाहेगा the issue gets undersubscribed or oversubscribed. Obviously, oversubscribed, they won't like it to be undersubscribed because otherwise they will have to take up the shortfall. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक therefore gets the bond issued at a lower price or higher price. The investment bank gets the bond issued at a lower price or higher price. इन्वेस्टमेंट बैंक कोई भी इशू लाता है ना, आईपीओ ये सब का, वो लोअर दाम पे लाता है कि हायर दाम पे लाता है? जनरली लोअर दाम पे लोअर दाम पे लाता है. तो एक तो कन्वर्टेबल बॉन्ड बहुत कम होते हैं बाजार में, और दूसरा लोअर प्राइस्ड होते हैं. दिस वॉज सीन बाय ग्रिफिन. ग्रिफिन सॉ दिस. ही फाउंड दैट कंपनी का स्ट्रेट बॉन्ड भी बाजार में ट्रेडेड है, कंपनी का शेयर्स भी बाजार में ट्रेडेड है, और कंपनी के ऊपर कॉल ऑप्शन भी बाजार में ट्रेडेड है. तो इमेजिन 4 थिंग्स: convertible bond, straight bond,
shares call option and he found that यार ये तो मिस प्राइसिंग चल रहा है, कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो कॉल ऑप्शन छुपा हुआ है दैट इज एट डर्ट चीप प्राइसेस. व्हाई डर्ट चीप? बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंक ने नीचे दाम पे इशू किया है, डर्ट चीप प्राइसेस, एंड अकॉर्डिंगली कन्वर्टेबल बॉन्ड बाई किया और स्टॉक सेल किया. कन्वर्टेबल बॉन्ड बाई किया और स्टॉक सेल किया. कन्वर्टेबल बॉन्ड बाई किया और स्टॉक सेल किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ अल्फा? द सोर्स ऑफ अल्फा इज द अंडरवैल्यूड कन्वर्टेबल बॉन्ड. हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? दीपिका रावत, आपको समझ में आया क्या? कन्वर्टेबल बॉन्ड अंडर प्राइस था, ये आपको समझ में आया क्या? दीपिका रावत, साक्षी, समझ में आया क्या? कन्वर्टेबल बॉन्ड अंडर प्राइस क्यों था, उसका मैंने लॉजिकल रीजन दिया है. दीपिका को समझ में आ गया कि सर कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है ना इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू इशू होता था और नया नया उस समय ज्यादा पॉपुलर नहीं था, तो नीचे दाम पे इशू किए जिससे कि इन्वेस्टर्स लोग ले लें. ठीक है, तो इट वाज अंडर प्राइस्ड. तो द कॉल ऑप्शन विद इन द कन्वर्टेबल बॉन्ड वाज अंडर प्राइस्ड एंड अकॉर्डिंगली आप चीप कॉल बाई किए और उसका इक्विवेलेंट शेयर सेल कर दिए. दैट्स व्हाट Griffin started doing. The caliber lies not in the fact that we are understanding. Sir, Griffin के जैसा दिमाग अपने में भी है. The caliber lies in first mover advantage. किसी का सोचना ये बात. He thought about it and it did fabulous because he was doing arbitrage in that sense, not in the theoretical sense, but it was more or less arbitrage, convertible bond arbitrage. After graduating in 1990s, he started the Citadel hedge fund and investors poured money and they really earned great returns. By the late 1990s, his friends who were there at Harvard, okay, they also started, others also started, and convertible bond arbitrage became a strategy which is so big that it cannot absorb money because उतना convertible bonds था ही नहीं. उतना कन्वर्टेबल बॉन्ड्स था ही नहीं और इतना डिमांड क्रिएट हो गया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का कि अल्टीमेटली जाके कन्वर्टेबल बॉन्ड स्टार्टेड गेटिंग इशूड एट अ हायर प्राइस एंड द होल अल्फा वाज गॉन. तो इफ यू विल चेक ईदर ऑन जीपीटी और ऑन गूगल और मे बी इन अ कोर दैट कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी का ग्राफ कैसा है, रिटर्न्स का ग्राफ, कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी का ग्राफ, तो यू विल फाइंड द ग्राफ इज लाइक दिस 1987 से अप और उसके बाद अब जाके 1990s के एंड में जाके इट बिकम्स फ्लैट. 19 माने क्या बोलते हैं हम, 2000 करीब में जाके पूरा फ्लैट हो गया. इट हैज नेवर परफॉर्म दैट ग्रेट अप टिल नाउ. हाँ, वो अलग बात है कि अभी 2-3 साल से माइक्रो स्ट्रैटेजी माइकल सेलर, ओके, माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो माइकल सेलर है, ही हैज गिवन अ फ्रेश लेग टू कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज बाय बिकमिंग अ बिटकॉइन रिजर्वायर, बिकॉज वो कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर रहा है और वो कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है, ठीक है, उससे जो पैसा रेज हो रहा है उससे बिटकॉइन बाई कर रहा है. द बैलेंस शीट एसेट साइड इज जस्ट बिटकॉइन 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 एंड द कन्वर्टेबल बॉन्ड मनी इज यूज्ड टू बाय बिटकॉइन. ओके, द पार्टी इज गोइंग ऑन. मेनी फंड्स इन जापान हैव स्टार्टेड, यूएस हैव स्टार्टेड, हु आर डूइंग द सेम स्ट्रैटेजी, कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज. डू आई मीन टू से दैट कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज मैंने कंप्लीट कर दिया? नो, मैंने कंप्लीट नहीं किया है. मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, आपने सब पढ़े थे ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिनका इंग्लिश था फर्स्ट लैंग्वेज, लोगों ने पढ़ा होगा. हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनका हिंदी था फर्स्ट लैंग्वेज, इजंट इट? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास. वैसे ही देयर शुड बी हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल लिटरेचर. एंड इफ यू गो टू द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल लिटरेचर, you will find that the hedge fund industry, which was like a millions ka industry, millions ka, up until the turn of the century 2000, it has turned into a multi-billion industry. Each particular fund is no less than $1 billion assets under management. Okay, stupendous growth of the hedge fund industry. If you check a pie chart of the different of the asset allocation of endowments, the pie chart of asset allocation of endowments, and you will find that around 15 to 20% of the endowment funds are invested in hedge fund. Can you imagine what we are saying? 15 to 20% of the endowment funds are invested in hedge funds. Money is pouring like anything. In India, SEBI has been a little bit skeptical regarding allowing this type of stuff, but still AIF
कैटेगरी 3, पर उस पर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर हेज फंड हो नहीं पा रहा है। और अभी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड चालू किए हैं उसमें स्कोप चालू हो रहा है धीरे 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 धीरे, बट अभी भी इंडिया इज फार बिहाइंड बिकॉज सेबी इज रियली अफ्रेड दैट समबडी विल डू अ ट्रेचरस एक्ट by destroying investors' faith by starting all out hedge fund. Jane Street का एपिसोड हुआ ही है, but let me tell you that if somebody really gets the kick inside him by studying derivatives, by studying fixed income, वो quantitative person, उसको मैथ से फीलिंग आता है, स्ट्रैटेजाइजिंग से फीलिंग आता है, उसको फंडामेंटल जोर का आता है, पर वो 10 साल 12 साल बाई एंड होल्ड नहीं करना चाहता है, वो पर्सन के लिए हेज फंड सही है। क्या हेज फंड में फ्यूचर होगा? चाहे धरती आकाश हिल जाए, हेज फंड में इमेंस फ्यूचर होने वाला है। व्हाई? बिकॉज पीपल हु आर HNIs, पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट फंड्स, ऑल दीज दे वांट मार्केट न्यूट्रल रिटर्न। वो लोग को चाहिए काश कोई ऐसा स्ट्रैटेजी हो जिसमें स्टॉक मार्केट जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे मतलब नहीं हो, स्टॉक मार्केट जब नीचे जाए तब भी रिटर्न्स ठीक ठाक मिले। हेज फंड का पर्पस हाई रिटर्न देना नहीं है, हेज फंड का रिटर्न पर्पस है नॉर्मल रिटर्न्स देना बट लो रिस्क पे, नॉर्मल रिटर्न देना पर रिस्क कम करना, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन, लेस कोरिलेशन विथ मार्केट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हेज फंड। ठीक है, तो ऑल्दो यू नो अबाउट इट लेवल 1 से, बट ऑब्वियसली इतने दिन बाद 2 महीने का टाइम हो गया है तो ऑब्वियसली मेरा पर्पस होता है कि मैं उसको वो करूं। ठीक है, हेज फंड का धर्म is not to manufacture beta return, it is to manufacture alpha return, it is to manufacture alpha not beta. Okay, market में exposure, value में exposure, size में exposure, momentum में exposure, illiquidity में exposure. Okay, are you hearing? market में exposure, S&P 500 में momentum exposure, okay, liquidity में illiquidity में exposure, वैल्यू में एक्सपोजर, साइज में एक्सपोजर, ये तो हम लोग भी चीपली ले सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ हेज फंड, व्हाई वुड वी पे देम 2/20? वी विल नॉट पे देम 2/20 फॉर डूइंग दिस रेकलेस एक्टिविटी, फॉर लेवरेजिंग देमसेल्व्स अप। वी विल पे देम 2/20 फॉर द पर्पस ऑफ द फैक्ट दैट अगला एक धंधा चला रहा है, उसमें रेंट पे जगह ले रखा है, स्टाफ को हायर कर रखा है, 2% तो उसका और 20% कमाने का। कमा के दिखाओ आउट परफॉर्मेंस, तब जाके 20% देंगे। There is no calculation of high watermark and all that in CFA level 2. सर कितना अच्छा था, मजा आता था, मजा गया। There is no calculation of high watermark and all that in CFA level 2. It is hedge fund strategies, not hedge fund. Remember CFA level 1 में hedge fund strategies में कितना lip service था, याद है? याद कर लेते थे बस, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, मल्टीपल चॉइस राइट हो रहा है, यहां पे उसके अंदर घुस रहे हैं। Am I communicable? Am I communicable? ऑडियो समरी पूरा डाल दूंगा, डोंट वरी। ये तो उछाल है, उठा रहे हैं टॉपिक को और उठाना जरूरी है। एनीबडी ओवर हियर हु फील्स दैट सर इस तरह से टॉपिक को शुरू में उठाना नहीं चाहिए, टाइम वेस्टेज है? एनीबडी ओवर हियर हु फील्स दैट उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता ये सब बोलने से और फर्स्ट क्लास में किसी टॉपिक के बिगिनिंग में इस तरह का भूमिका नहीं देना चाहिए? एनीबडी? Classes should be knowledgeable, classes should be as per the curriculum and classes should be interesting. Classes should run a fire into your body so that you can understand the various different areas in which your future is there. CFA program is no Tom, Dick, Harry program. Okay, it is a program that it can take you to the skies if you get the passion which I am trying to create. Sir, ठीक है, समझ गए, पैशन आ गया, चलिए सर चैप्टर को चलाते हैं। तो चैप्टर को चलाने के लिए आई वुड प्ले विथ अ स्ट्रैटेजी जो आप लोग को सबसे ज़्यादा पता है। टेक 1 मिनट एंड ट्राई टू रिकलेक्ट मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी। मैंने देखा है CFA लेवल 1 के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मर्जर आर्बिट्राज पता होता है। प्लीज़ एक बार याद कर ले 1 मिनट में, यू विल टेक सम टाइम। मर्जर आर्बिट्राज, दीपिका रावत, साक्षी आज है नहीं, ध्रुव, शाश्वत, कैलाश। मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी को मन में रिकैप कर लीजिए। रिकैप होने के बाद बोलिएगा यस सर हो गया, डन।
मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी को एक बार मन में रिकैप कर लीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट हो ना जिसको लगे किस्सा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लिख देना, कांट रिमेंबर एनीथिंग। दिस इज अ लाइव क्लास। लाइव क्लास में ह्यूमन बींग्स को पढ़ा रहा हूं सामने। यू गॉट टू रिप्लाई। मैं सो के नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको सो के पढ़ना नहीं है। ब्यूटीफुल, सबको ध्यान आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं पीएचडी कर रखे है, पर कम से कम ध्यान आ रहा है। मर्जर आर्बिट्राज में ए लिमिटेड अक्वायर्स बी लिमिटेड। अपने किसका स्टॉक बाई करते हैं और किसको सेल करते हैं? ए लिमिटेड अनाउंसेस इट विल अक्वायर बी लिमिटेड। किसका स्टॉक बाई करते हैं और किसको शॉर्ट करते हैं? उल्टा लिखा है किसी ने, बहुत जन उल्टा लिख रहे हैं। प्रीति भर उल्टा लिख रही है। वी बाय द टारगेट, वी सेल द अक्वायरर, बिकॉज यूजुअली मर्जर्स एंड एक्विजिशन में टारगेट को ओवरपे किया जाता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में व्हेन ए लिमिटेड अक्वायर्स बी लिमिटेड, व्हेन मेटा फेसबुक अक्वायर्ड लिंक्डइन, व्हेन फेसबुक अक्वायर्ड लिंक्डइन, डिड इट ओवरपे? यस, इट ओवरपेड। और आज के दिन लिंक्डइन जो है फेसबुक ही बन गया है। उसका रिस्पेक्ट बचा नहीं है मेरी नजरों में। तो जो लिंक्डइन में चल रहा है, देयर इज नो रिस्पेक्ट लेफ्ट, बिलीव मी, इट हैज बिकम अनदर फेसबुक। When Elon Musk acquired Twitter, was it acquired at fair value? No, it was overpayment. All mergers and acquisition usually take place at a premium such that we believe that the target is overvalued and the target is undervalued, the acquirer is overvalued. तो target को अपने buy करेंगे और acquirer को sell, target को buy, acquirer को sell। अब एक जबरदस्त आइटम सेट मैंने क्रिएट किया है अभी। मेरे को 2 घंटा लगा इस आइटम सेट को क्रिएट करने में। ओके, ये आइटम सेट गोल्डन वर्ड्स में क्लाउड में स्टोर होना चाहिए। यू कैन नेवर गेट दिस आइटम सेट ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट। ओके, इट हैज बीन क्रिएटेड सोनली बाय मी, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट सारा का सारा प्रॉम्प्ट और सारा सोचना मेरा था और बहुत ट्विस्टिंग करना पड़ा। ओके, इट शुड गो एज अ केस स्टडी ऑन हार्वर्ड। चलो लेट्स लुक एट दिस आइटम सेट, धीरे धीरे करेंगे। आइए, a logistic technology company, Northwind Logistics, announces a plan to acquire a drone delivery firm in a stock for stock transaction. ये लैंग्वेज क्लियर है क्या? A logistic technology company, Northwind, announces a plan to acquire a drone delivery firm, Skyport Drones, in a stock for stock transaction. Is this language clear? Yeah, there's somebody who doesn't get any feeling. सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉजिस्टिक कंपनी, समझ रहे हैं? लॉजिस्टिक कंपनी जैसे ब्लू डार्ट, ये सब, वो अक्वायर कर रहा है एक ड्रोन डिलीवरी फर्म को। और क्यों अक्वायर कर रहा है? ये बिजनेस सेंस आ गया होगा। क्यों अक्वायर कर रहा है? ये बिजनेस सेंस आ गया होगा। चाइना में ऑलरेडी ड्रोन से डिलीवरी हो रहा है, जापान में हो रहा है। ओके, ड्रोन डिलीवरी फर्म अक्वायर कर रहा है इन अ स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजैक्शन, यानी जो परचेस कंसिडरेशन है वो किस तरह पेमेंट होगा, कैश में या स्टॉक में? स्टॉक में। तो जो स्काईपोर्ट है उसके शेयर होल्डर्स को अपने अपना शेयर्स इशू करेंगे। स्काईपोर्ट के शेयर होल्डर्स को अपने अपना शेयर्स इशू करेंगे। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल इन द सेंस ये नॉर्थ विंड के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, स्काईपोर्ट के लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या? नॉर्थ विंड के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, स्काईपोर्ट के लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मैं बोला था मैं टाइम स्पेंड करूंगा समझाने में, बिकॉज अगर धंधा ही नहीं समझाए तो क्यों पढ़ा रहे हैं? ओके, नॉर्थ विंड के लिए इट्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन और स्काईपोर्ट के लिए इट्स फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बहुत सारे कंपनीज आज के डेट पे जो एस्टैब्लिश्ड है वो लोग एआई को अडॉप्ट करने के लिए इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस कर रहे हैं। दैट्स वन ऑफ देम। आई होप इट इज क्लियर, एवरीबडी सेइंग इट इज। एक्सचेंज रेशियो 3 Northwind shares for every 5 Skyport shares। 3 Northwind shares for every 5 Skyport shares। तो अगर आपके पास 5 शेयर है स्काईपोर्ट का, आप उसके बदले 3 शेयर मिलेगा आपको नॉर्थविंड का। ठीक है, तो एकदम क्लियर। इफ यू हैव 5 शेयर्स यू विल गेट 3 शेयर्स ऑफ नॉर्थविंड। ठीक है, प्राइस पर शेयर प्री अनाउंसमेंट नॉर्थविंड स्काईपोर्ट
प्राइस दिख रहा होगा। पोस्ट अनाउंसमेंट नॉर्थविंड स्काईपोर्ट, प्री अनाउंसमेंट, पोस्ट अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के पहले क्या दाम था, अनाउंसमेंट के बाद क्या दाम था, देख लिया आपने दाम। जो बुद्धिमान स्टूडेंट है वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया होगा, जो बुद्धिमान स्टूडेंट है वो कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया होगा। क्या लिखा हुआ था, 3 शेयर्स ऑफ नॉर्थविंड फॉर 5 शेयर्स ऑफ स्काईपोर्ट। इसके हेल्प से कुछ कैलकुलेशन तो बनता ही है। आई एम नॉट वांटिंग दैट तुम केवल गाड़ी में बैठ के एसी का हवा लो, थोड़ा सा हेल्प करो मेरे को। कम से कम गाड़ी के बाहर क्या दिख रहा है थोड़ा बताओ तो सही। प्लीज लीड। एनीबडी एबल टू डू सम फिगर क्रंचिंग ओवर हियर? एनीबडी एबल टू डू सम नंबर क्रंचिंग ओवर हियर? आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। कहां हो कैलाश, उत्कर्ष, साक्षी, दीपिका? There are no replies. Strange. आशीष बोल रहा है 24 रुपया का गैप है। आशीष है सेट 24 रुपया का गैप है। तो ये अनाउंसमेंट के बाद हो रहा है। 60 इंटू 5 इज 300, 112 इंटू 3 इज 336, 60 इंटू 5 इज 300, 112 इंटू 3 इज 336। तो मेरे को तो 36 रुपीज का गैप दिख रहा है। दिखा क्या दीपिका? 60 इंटू 5 600। तुम जो शेयर्स तुम्हारे पास है दीपिका, अगर तुम टारगेट के शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास 5 शेयर 300 का है, 5 इंटू 60। एंड इसके बदले तुमको जो शेयर्स मिलेगा वो 3 इंटू 112 336 का है। तो मेरे को 36 का गैप दिख रहा है। दिखा क्या? इसके आगे बढ़ नहीं सकते अगर नहीं दिखा है तो। 36 का गैप है। तो व्हाट इज द आर्बिट्राज? व्हाट इज द आर्बिट्राज? व्हाट इज द आर्बिट्राज? व्हाट इज द आर्बिट्राज? वेटिंग फॉर योर आंसर। प्लीज जोश में जवाब दो। व्हाट इज द आर्बिट्राज? The arbitrage is to buy 5 shares of Skyport and to short sell 3 shares of Northwind. To buy 5 shares of Skyport and to sell 3 shares, short sell 3 shares of Northwind. सब 5 शेयर Skyport का बाई कर लेते हैं और 3 शेयर्स नॉर्थविंड का शॉर्ट सेल कर देते हैं। शॉर्ट सेल बाद में जाके जब मर्जर हो जाएगा तो 5 शेयर को दिखाएंगे तो 3 शेयर नॉर्थविंड का मिलेगा। वो 3 शेयर से जो शॉर्ट सेल किए थे उसको कवर कर लेंगे। शॉर्ट सेल आप लोग वर्ड समझ रहे नहीं हो दीपिका? 5 शेयर्स अपने स्काईपोर्ट का बाई करेंगे और 3 शेयर्स नॉर्थविंड का शॉर्ट सेल करेंगे। बाई किए 5 शेयर, जब मर्जर हुआ तो जाके 5 शेयर सबमिट कर दिए, उसके बदले 3 शेयर नॉर्थविंड का मिलेगा, उससे शॉर्ट सेल को कवर कर लेंगे। शॉर्ट सेल को कवर कर लेंगे। समझ में आया? 36 के प्रॉफिट का स्कोप है। 36 के प्रॉफिट का स्कोप है। 36 के प्रॉफिट का स्कोप है। व्हाट इज द रिस्क? व्हाट इज द रिस्क? सर मर्जर ही नहीं हुआ तो? व्हाट इज द रिस्क? सर मर्जर ही नहीं हुआ तो आप लोग को तो याद होगा CFA लेवल 1 में मार्केट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर, उसके अंदर देयर वर सम मेजर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन अ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। इनमें कुछ कंसंट्रेशन मेजर का कुछ फॉर्मूलाज था। कंसंट्रेशन मेजर्स का कुछ फॉर्मूला था। कैलाश अच्छा जवाब नहीं है तुम्हारा। कंसंट्रेशन मेजर्स का कुछ फॉर्मूला था। कंसंट्रेशन मेजर्स का कुछ फॉर्मूला था, याद आया क्या? 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो हर्फिंडाल इंडेक्स, 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो हर्फिंडाल इंडेक्स, जिसको रेगुलेटर्स लोग देखते हैं। अगर उन लोग को लगता है कि कोई इंडस्ट्री में मर्जर होने से
कोई इंडस्ट्री में मर्जर होने से बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, कंपटीशन किल हो जाएगा, द मर्जर विल नॉट बी अप्रूव्ड. The merger will not be approved. There could be regulatory reasons, there could be legal reasons, there could be governance reasons, there could be other reasons why the merger is not approved. Elon Musk ने जब बोला था कि ट्विटर को अक्वायर करेगा तो उसके बाद तो पीछे हट ही गया था. पीछे हटने के बाद ट्विटर केस ला दिया था इलॉन मस्क पे कि तुम कैसे अक्वायर नहीं करेगा, और तब डर के ही वेंट अहेड, तब डर के ही वेंट अहेड. एनीवेज, तो आपको 36 समझ में आ गया है. So there is a deal risk. What risk? Deal risk. There is a deal risk. A hedge fund manager, Miguel, implements a classic merger arbitrage position after the announcement. Announcement के बाद उसने ये arbitrage लेने का सोचा. क्या? Long 50,000 shares of Skyport at 60, short 30,000 shares of Northwind at 112. ठीक है, अपने 5-3 बोले थे वही कर रहे. 50,000 शेयर्स 60 पे बाय, तो 60 इंटू 50,000 कितना गया? 30 लाख. शॉर्ट सेल 30,000 शेयर्स एट 112, कितना आया? क्या 36 लाख? क्या चेक करो, मेरे ख्याल से 30 लाख गया, 36 लाख आया और 6 लाख का इनिशियल इनफ्लो हुआ. एम आई करेक्ट? मैं वर्बली कर रहा हूं, आई कैन बी रॉन्ग. आई मे बी रॉन्ग. या 60 इंटू 50,000 आई थिंक इज 30 लाख एंड 30,000 इंटू 112. जीरो का गलती हो रहा है क्या मेरे से? 30,000 इंटू 112 is 33 lakh. No, 33 lakh 60,000. 33 lakh 60,000. Yes, 33 lakh 60,000 हो रहे वो. This is 33 lakh 60,000 and this is I think 30 lakh. So accordingly inflow is 3 lakh 60,000. ये ओके है सबके लिए. उसके अलावा मैंने डील रिस्क बोला था. डील रिस्क, इफ द डील सक्सीड्स द 50,000 Skyport shares convert into 30,000 Northwind shares which can be delivered to cover the short. ये बोलना नहीं चाहिए था क्वेश्चन में, बट सिंस ये फर्स्ट क्लास है मैं देखा लिखा दो. दिस वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द question if the actual question comes. ये नहीं लिखना चाहिए था, but since it's the first question, if the deal fails both the stocks are assumed to revert to their pre-announced level. अगर डील फेल हुआ तो आपको अज्यूम करना है कि स्टॉक का दाम वहीं पहुंच जाएगा जहां प्री अनाउंसमेंट में था. स्टॉक का दाम वहीं पहुंच जाएगा जहां प्री अनाउंसमेंट में था. ठीक है ना? ओके, प्लीज एक बार कॉपी में नोट कर लो ये क्या ये फिगर्स, जैसे कि अभी मैं अगर नीचे जाऊं तो आपको फिगर्स याद हो. लॉन्ग किए 50,000 शेयर स्काईपोर्ट का 60 पे, शॉर्ट किए 30,000 शेयर नॉर्थविंड का 112 पे, और उन लोग का जो प्री अनाउंसमेंट प्राइस 120 और 48 था, 120 और 48 वो दाम हो जाएगा अगर डील फेल हो गया तो. आई एम होपिंग दैट यू हैव कॉपीड रफ में, रफ वर्क लिख दो, रफ वर्क. और 120 और 48 प्री अनाउंसमेंट प्राइस और 112 और 60 पोस्ट अनाउंसमेंट प्राइस आपने कॉपी कर लिया होगा. डोंट टेल मी सर, प्लीज शो द फिगर्स. ठीक है, बिकॉज ऊपर नीचे करने में टाइम लग जाएगा. मिगुएल लेटर कंसिडर्स हेजिंग विथ ऑप्शंस. नहीं सर, आगे रीड मत कीजिए, यहां से क्वेश्चन पक्का होगा ना. सेगमेंट एंड स्ट्राइक अप्रोच याद होगा, फर्स्ट क्लास जिन्होंने किया, इंडक्शन क्लास. सेगमेंट एंड स्ट्राइक अप्रोच, सेगमेंट एंड स्ट्राइक अप्रोच. तो क्वेश्चन नंबर वन है द अनहेज्ड पोजिशंस पे ऑफ इफ द मर्जर सक्सीड्स इज क्लोजेस्ट टू. व्हाट इज द पे ऑफ इफ द मर्जर सक्सीड्स? निकाल चुके हैं अपने. व्हाट इज द पे ऑफ इफ द मर्जर सक्सीड्स? तो मर्जर सक्सीड हो गया तो हमारा बाद में कोई पे ऑफ थोड़ी होगा,
हम तो 5 शेयर सबमिट करेंगे, 3 शेयर मिलेगा, वो 3 शेयर से कवर कर लेंगे। आज जो पैसा आया वही तो प्रॉफिट है, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। ओके, 3,60,000, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, द अनहेज्ड पोजिशंस पे ऑफ इफ द मर्जर फेल्स, और ब्रैकेट में हेल्प कर रहा हूं, रिवर्जन टू प्री अनाउंसमेंट प्राइसेस इज क्लोजेस्ट टू। बताइए क्या लॉस होगा अगर मर्जर फेल हो गया तो? आपके पास फिगर्स लिखा हुआ है। 60 पे बाई किए थे, उसका शेयर वो चला जाएगा वापस से आई थिंक 48 पे। 60 पे बाई किए थे, उसका शेयर वो चला जाएगा 48 पे। 12 का लॉस, 50,000 इंटू 12 आई थिंक 6 लाख का लॉस। और नॉर्थ विंड जो है उसका शेयर 112 से 120 बढ़ जाएगा, तो शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो 8 का लॉस, 30,000 इंटू 8, 2,40,000 का लॉस। तो 6 लाख एंड 2,40,000, मेरे ख्याल से 8,40,000 का लॉस आ रहा है। 8,40,000 का लॉस आ रहा है। दीपिका दिमाग चला लो, 60 का शेयर बाई किया, 48 हो जाएगा, 12 रुपीज़ पर शेयर का लॉस 50,000 शेयर्स पे, तो 50,000 इंटू 12, 6 लाख का लॉस। और जो नॉर्थ विंड है उसको शॉर्ट किए थे 112 पे, उसका दाम बढ़ जाएगा 120, तो 8 रुपये का लॉस। तो 8 इंटू 30,000, 2,40,000 का लॉस। तो 6 लाख प्लस 2,40,000, 8,40,000 का लॉस। 6 लाख प्लस 2,40,000, 8,40,000 का लॉस। 8,40,000 का लॉस। ऑप्शन नंबर बी, 8,40,000 का लॉस। मैंने ऑप्शंस चेक नहीं किया था, अगर जीपीटी ने सारे का ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया होगा तो गड़बड़ है, ठीक है। दैट वुड बी अ बैड लक। मैंने उतना चेक नहीं कर पाया, मेरा पेशेंस चला गया था। मैंने क्वेश्चन बना के, आंसर भी बना के, उसके बाद जीपीटी को बोल दिया था प्लीज कन्वर्ट देम इनटू मल्टीपल चॉइस स्टाइल आइटम सेट, ठीक है। दिस इज व्हाट आई डिड। तो इट मे बी दैट जीपीटी सबका ऑप्शन बी 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 कर दिया होगा। ओके, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 8,40,000 का लॉस। Question number 3, the risk to reward ratio, loss of failure and gain on success for the unhedged position is closest to? What is the risk reward ratio? तो risk reward ratio क्या हो गया? 8,40,000 का लॉस डिवाइड बाय 3,60,000 का प्रॉफिट। 8,40,000 का लॉस, 3,60,000 का प्रॉफिट। व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? 2.33। द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 2.33। बहुत ही खराब है। हर 1 रुपया जो कमा सकते हैं उस पर 2.33 गंवा सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी विल मैटर कि क्या चांस है डील होने का या नहीं होने का, बट अदरवाइज खराब लग रहा है। फॉर एवरी 1 रुपी पॉसिबल गेन द लॉस इज गोइंग टू बी 2.33। तो मनी वाइज तो इट्स बैड, बट ऑप्शंस में तो मनी वाइज क्या होता है आप लोग को पता ही है। जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं उन लोग को लगता है बस 10 रुपया प्रीमियम और यार 1000 कमा सकते हैं। इट डजंट हैपन दैट वे, प्रोबेबिलिटीज मैटर। क्वेश्चन 4 ऑप्शंस का पूछ रहा है, वी हैव टू गो टू द राइट अप। तो सेगमेंट एंड स्ट्राइक अप्रोच से 3 क्वेश्चन हो गया। मिगुएल लेटर कंसिडर्स हेजिंग विथ ऑप्शन, सोच रहा है यही चीज करते हैं। स्काईपोर्ट का शेयर्स बाई करते हैं, नॉर्थ विंड का सेल करते हैं, बट हेज कर लेते हैं। हेज करने के लिए पुट का दाम दिया है, स्ट्राइक प्राइस 55, 1.1। कॉल का दाम दिया है नॉर्थ विंड पे, स्ट्राइक प्राइस 115, 2, प्रीमियम इज 2। तो इन दैट केस टेल मी समथिंग, अपने स्काईपोर्ट को बाई कर रहे हैं, जिस स्टॉक को बाई करते हैं उस पर क्या चीज़ का डर? बिकॉज हेजिंग का मतलब होता है जिस चीज़ का डर है उस चीज़ से फ़ायदा उठाना है। हेजिंग का मतलब होता है जिस चीज़ का डर है आपको डेरिवेटिव में उस चीज़ से फ़ायदा उठाना है। तो स्काईपोर्ट को अपने बाई किए, क्या चीज़ का डर? गिरने का डर। गिरने का डर, तो जाहिर है पुट क्या करेंगे? बाय। गिरने का डर है स्काईपोर्ट का सर, तो पुट क्या करेंगे? बाय। वी विल बाय द पुट P+। और नॉर्थ विंड को शॉर्ट किए, शॉर्ट। जब शॉर्ट करते हैं तो क्या चीज़ का डर? बढ़ने का डर। शॉर्ट किए तो बढ़ने का डर, तो बढ़ने का डर है तो बढ़ने से फायदा उठाना है, तो कॉल ऑप्शन बाय। दीपिका रावत समझ में आ गया होगा।
तो इसमें 50,000 इंटू 1.1 $55,000 गया। 30,000 इंटू 2 30,000 इंटू 2 $60,000 गया। $55,000 गया, $60,000 गया, टोटल 1,15,000 इंश्योरेंस का कॉस्ट लग रहा है। 1,15,000 इंश्योरेंस का कॉस्ट लग रहा है। 1,15,000 इंश्योरेंस का कॉस्ट लग रहा है। तो अपना जो इनिशियल इनफ्लो था ना 3,60,000, अगर हेज करेंगे तो 360 माइनस 1,15,000, 360 माइनस 1,15,000 कितना इनिशियल इनफ्लो हुआ? 2,45,000। किसी को भी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है मेरे को रोक सकता है। 50,000 शेयर्स पे पुट बाई किए तो 50,000 इंटू 1.1 55,000 गया। 30,000 शेयर्स पे कॉल बाई किए 30,000 इंटू 2 60,000 गया। टोटल 1,15,000 गया। तो 3,60,000 आया था, 1,15,000 गया, 2,45,000 अगर अपने हेज करेंगे तो दैट इज द इनिशियल इनफ्लो। ठीक है ना। ही इवैल्यूएट्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ यूजिंग अ 15% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, देखते हैं नीचे कुछ पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फंड मैनेजर एड्स ऑप्शंस बाइज दे दिया है, ऐसे देता नहीं है, मैंने इजी कर दिया, मैंने इस तरह बनाया नहीं था। व्हेन आई आस्क्ड जीपीटी टू कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीपल चॉइस, तब उसने बहुत ही आसान कर दी है। बाय 50,000 पुट्स एंड बाय 30,000 कॉल्स, द नेट पे ऑफ इफ मर्जर सक्सीड्स इज क्लोजेस्ट टू। तो अगर मर्जर सक्सीड हो गया तो प्रॉफिट क्या होगा? 2,45,000। मर्जर सक्सीड हो गया तो कॉल और पुट तो लैप्स हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ा, कॉल और पुट लैप्स हो गया। 2,45,000 जो इनिशियल इनफ्लो हुआ था वो प्रॉफिट हो गया 2,45,000। तो प्रॉफिट कम हो गया 360 से 2,45,000, जैसा इंश्योरेंस में हमेशा होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द सेम हेज द नेट पे ऑफ इफ द मर्जर फेल्स। तो हमने हेज किया पर मर्जर फेल हो गया, तो उस केस में पे ऑफ क्या होगा? आफ्टर द ऑप्शन प्रीमियम, ऑब्वियसली ऑप्शन प्रीमियम कंसिडर करके देखते हैं। चलो फिर से ऊपर आ जाते हैं। सॉरी, स्ट्राइक प्राइस क्या है? व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस? ओके, लुक एट द स्ट्राइक प्राइस। तो स्काईपोर्ट का अपने शेयर बाई किए थे कितने पे? स्काईपोर्ट का शेयर बाई किए थे अपने 60 पे। अगर मर्जर फेल हो गया तो उसका प्राइस गिर के 48 हो गया। स्काईपोर्ट का शेयर बाई किए थे 60 पे, 60 याद होगा आप लोग को। अगर मर्जर फेल हो गया तो उसका दाम गिर के 48 हो जाएगा, बट 55 पे पी प्लस राइट टू सेल, 55 पे पी प्लस राइट टू सेल। तो अपने को लॉस 5 का होगा या 12 का? प्रीमियम बाद में ले लूंगा मैं प्रीमियम बाद में ले लूंगा। अपने 60 पे शेयर बाई किए थे, अगर मर्जर फेल हुआ तो शेयर का दाम गिर के 48 हो गया, द प्राइस बिकम्स 48, बट वी हैव अ पी प्लस एट 55, तो ऑब्वियसली वी विल सेटल एट 55, सो लॉस इज 5। तो 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 5, $50,000 इंटू 5, 2,50,000 का लॉस, सॉरी 25,000 का लॉस विदाउट कंसिडरिंग ऑप्शन प्रीमियम। 50,000 इंटू 5, 25,000 का लॉस। और नॉर्थ विंड में अपने किस दाम पे शॉर्ट सेल किए थे? नॉर्थ विंड को किस दाम पे शॉर्ट सेल किए थे? आई फॉरगॉट। किस दाम पे शॉर्ट सेल किए थे? नॉर्थ विंड को 112 पे शॉर्ट सेल किए थे। नॉर्थ विंड को 112 पे शॉर्ट सेल किए थे और दाम उसका 120 हो गया, बट 115 पे ये लोग बोल रहे हैं 2,50,000 होगा, और 2,50,000 है। ठीक है, तो 2,50,000, दैट्स फाइन, नो इश्यूज। दिस इज 2,50,000, 2,50,000, ठीक है ना। 50,000 इंटू 5, 2,50,000, दैट्स फाइन। तो अपने नॉर्थ विंड का शेयर्स को शॉर्ट किए थे 120 पे, नहीं 100 कितने पे? नॉर्थ विंड का शेयर्स को शॉर्ट किए थे 112 पे। तो मर्जर अगर फेल हो गया तो उसका दाम बढ़ के 120 हो गया, उसका दाम बढ़ के 120 हो गया।
बट 115 पे अपना C प्लस है तो 3 रुपये का लॉस, तो 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 इक्वल टू 90,000 का लॉस। सो 2,50,000 का लॉस प्लस 90 का लॉस कितना हो गया? 3,40,000 का लॉस प्लस 1,15,000 जो प्रीमियम पे किए थे। 3,40,000 का लॉस, 2,50,000 का स्काईपोर्ट पे लॉस और 90,000 का नॉर्थ विंड पे लॉस। 3,40,000 का लॉस प्लस 1,15,000 जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो तो लगा ही था ना। ये थोड़ी है सर एक्सरसाइज नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब, एक्सरसाइज तो हो गया है और नहीं होता तो भी क्या है। तो 3,40,000 प्लस 1,15,000 हाउ मच? 4 लाख। 3,40,000 प्लस 1,15,000 हाउ मच? 4,55,000। 4,55,000 का लॉस आ रहा है हेज्ड सिचुएशन में। इन केस द मर्जर फेल्स 4,55,000 का लॉस, 4,55,000 का लॉस, 2,45,000 का गेन इन द हेज्ड सिचुएशन। 2,45,000 4,55,000, 2,45,000 4,55,000 पूरा का पूरा शीट आपसे शेयर होगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीबडी थिंकिंग दैट सर ऐसे बोल दिए हम लोग समझें कैसे। सॉल्यूशन हैज बीन क्राफ्टेड बाय मी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, डोंट हैव टू वरी। तो इन दैट केस क्वेश्चन पक्का पूछा होगा। Under the same hedge, the net payoff if the merger fails is 4,55,000 negative, 4,55,000 negative। तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो पूछा होगा? नहीं पूछा है। रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो पूछना भूल गए, वरना रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो निकाल सकते थे ना। 4,55,000 डिवाइडेड बाय क्या था ये? 2,45,000। 4,55,000 डिवाइड बाय 2,45,000। तो नया वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या आ रहा है? 455 डिवाइड बाय 245 व्हाट इज इट? पूछा नहीं है। 455 डिवाइड बाय 245 व्हाट इज इट? 455 डिवाइड बाय 245 व्हाट इज इट? 1.26। पहले तो 2.33 था, नहीं 1.85 है। किसी ने बोला 1.26, पागल हो गया वो। 455 डिवाइड बाय 245 इट इज 1.857। ओके 1.857 और पहले 2.33 था, तो इट्स अ बेटर थिंग ना। For every 1 rupee of profit, there is a 1.86 का loss. It's better than unhedged. It's better than unhedged. Okay, based on the risk reward profile, better than unhedged. Next question पूछा है, with 15% probability of failure, the expected payoff is closest to. With 15% probability of failure, the expected payoff is closest to unhedged versus hedged. तो 15% is the deal risk, probability of failure is 15%. तो अभी जो किए ना अनहेज्ड वाला, उसका फिगर्स मेरे को याद है, पहले मैं वो सल्टा देता हूं। एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज समेशन पी एक्स बचपन से, सो 0.85 इंटू 2,45,000 प्लस 0.15 इंटू 4,55,000 नेगेटिव। बताइए 0.85 इंटू 2,45,000 पॉजिटिव और नेक्स्ट टर्म को लेस करना है 0.15 इंटू 4,55,000, वो नेगेटिव है ना, लेस करना है। आई होप ये क्लियर है। दीपिका रावत, समेशन पी एक्स 85% चांस है 2,45,000 अर्न करेंगे, 15% चांस है 4,55,000 लूज करेंगे, लूज वो नेगेटिव है। व्हाट इज द फिगर कमिंग टू एक्सपेक्टेड पे ऑफ? ओके प्रीति, शिवांगी, एवरीबडी सेइंग इट्स कमिंग टू 1,40,000। अगर 1,40,000 है तो 1,40,000 तो केवल इसमें ही है, नहीं 1,40,000 यहाँ भी तो अनहेज्ड बोले ना, अनहेज्ड वर्सेस हेज्ड, ये रहा 1,40,000। ए शुड बी द आंसर, 1,40,000 ए शुड बी द आंसर, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। अनहेज्ड वर्सेस हेज्ड, सो 1,40,000 अनहेज्ड का एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अपने कैलकुलेशंस के लिए आप हेज्ड का भी निकाल सकते हैं। शुभ बोल रहा है 276.5 आ रहा है, क्या आ रहा है उसका मेरे को नहीं पता, वो क्या बोल रहा है। ओके शुभ मैथ्स ऑन, ही इज सेइंग दैट 276.5 आ रहा है। शुभ वी डोंट नो इन विच वर्ल्ड यू आर, अपने वर्ल्ड में तो नहीं आ रहा है। 0.85 इंटू 2,45,000 पॉजिटिव
एंड 0.15 इंटू 4,55,000 नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव लेस हुआ, 1,40,000 आ रहा है। सॉरी सर मैंने गलती कैलकुलेशन कर दिया था। शुभ ऐसा बोलेगा या बोल रहा होगा मन में। और हेज्ड वाले में फिगर्स याद है क्या आपको? 0.85 इंटू 3,60,000 था, ये मेरे को याद है, प्लस 0.15 इंटू क्या था नेगेटिव, 0.15 इंटू नेगेटिव 8 लाख समथिंग था ना, याद है क्या? 8 लाख समथिंग का लॉस था ना वहां पे अनहेज्ड में, ये यहां था ना 8,40,000 का लॉस था। 0.15 इंटू नेगेटिव 8,40,000, negative 8,40,000. So 0.85 into 360 plus 0.15 into minus 8,40,000. What is it coming to? 0.85 into 3,60,000 ये पॉजिटिव है, एंड 0.15 इंटू माइनस, ओ अनहेज्ड का उल्टा है, उल्टा कर दिए हैं, ये गलती है, सॉरी दिस इज नॉट दी आंसर। अनहेज्ड का तो ये आंसर है ना, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं भी, अनहेज्ड वर्सेस हेज्ड, तो अनहेज्ड तो फर्स्ट वाला होगा, अनहेज्ड तो फर्स्ट वाला होगा 1,80,000, सॉरी ये अनहेज्ड था ना, ये अनहेज्ड था, दिस वाज अनहेज्ड, एंड ये कॉल पुट को लिए थे तो दिस वाज व्हाट, हेज्ड। तो हेज्ड का आंसर 1,40,000, अनहेज्ड का आंसर 1,80,000, हेज्ड का आंसर 1,40,000 और अनहेज्ड का आंसर 1,80,000, तो बोला अनहेज्ड वर्सेस हेज्ड, तो 1,80,000 वर्सेस 1,40,000 किस में ज्यादा है? सर अनहेज्ड में ज्यादा है। वी शुड नॉट हेज, वी शुड नॉट हेज, बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी वी शुड नॉट हेज। अनहेज्ड में 1,80,000 है, हेज्ड में 1,40,000 है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी 15%, वी शुड नॉट हेज। तो कुछ लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, परहैप्स यूजिंग बेस थ्योरम। ओके, परहैप्स यूजिंग बेस थ्योरम। कैसे बेस थ्योरम? लास्ट में हिंट दूंगा, जोश बचा तो। वैसे बेस थ्योरम काम का नहीं है लेवल 2 लेवल 3 कहीं पे भी, ठीक है, बट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये हुआ ऑप्शंस वाला पार्ट। आगे देखें, for systematic risk, assume that beta of north wind is 1.8, beta of skyport is 2.2, beta of north wind is 1.8, beta of skyport is 2.2, बीटा दिया हुआ है। तो जब भी आपने स्काईपोर्ट को बाई किया, यू टुक अ पॉजिटिव मार्केट एक्सपोजर, जब आपने नॉर्थ विंड को शॉर्ट किया तो यू टुक अ नेगेटिव मार्केट एक्सपोजर। ओके, आपका पॉजिटिव मार्केट एक्सपोजर, नेगेटिव मार्केट एक्सपोजर दोनों हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ थम गया है, केवल इस कंपनी का मर्जर चल रहा है। बाजार में बाजार का दाम भी चेंज होगा, जो इंडेक्स से चेंज होगा। सर ये तो चीटिंग है, ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। फॉर हेजिंग मार्केट एक्सपोजर, मिनी S&P 500 फ्यूचर्स ट्रेड एट 4200 विथ लॉट साइज ऑफ 50। तो अपने निफ्टी फ्यूचर्स जैसे होता है ना, वैसे S&P फ्यूचर से हेज करेंगे एक्सपोजर को। Assume a 10% index decline in one scenario। देखते क्या पूछेगा। Are you understanding? तो let's calculate our exposure। हमने स्काईपोर्ट का 50,000 शेयर्स बाई किया था दीपिका। अब दीपिका का माथा खराब हो रहा है, ले नहीं पा रही है शायद। 50,000 शेयर्स बाई किया था किस दाम पे? 60 पे। ये अमाउंट था, उसका बीटा 2.2 है। दिस इज आवर डॉलर बीटा एक्सपोजर, पॉजिटिव एक्सपोजर ऑन द मार्केट। हमने 30,000 शेयर सेल किया था आई थिंक 112 पे, और उसका बीटा 1.8 है। अमाउंट इनटू बीटा, अमाउंट इनटू बीटा, दिस इज द अमाउंट, अमाउंट इनटू बीटा माइनस अमाउंट इनटू बीटा। आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द नेट एक्सपोजर ऑन द S&P। अगर आपने 50,000 शेयर बाई किया 60 का, तो 3 लाख का शेयर्स बाई किया 2.2 बीटा वाला, तो इनडायरेक्टली S&P पे 3 लाख इंटू 2.2। और आपने शॉर्ट सेल किया था नॉर्थ विंड को 30,000 शेयर्स 112 पे, और उसका बीटा 1.8,
What is the net dollar beta exposure? What is the net dollar beta exposure? Deepika has not answered. I am waiting for her. 50,000 into 60 into 1 into 2.2 minus 30,000 into 112 into 1.8 minus 30,000 into 112 into 1.8. Yes, please. 5,52,000. दीपिका ने तो आंसर नहीं की है, बाकी लोगों ने कर दिया है. 5,52,000. This is the net market exposure. 5,52,000. This is the net market exposure. मतलब एक तरह से आपने निफ्टी बाई किया है. 5,52,000 निफ्टी में लगाया है, S&P 500 में. आपका 5,52,000 S&P 500 में लगा है एक तरह से. By buying Skyport, you bought S&P. By selling Northwind, you sold S&P. Net में you have bought S&P to the extent of 5,52,000. Is it clear? दीपिका रावत का भी आंसर आ गया. 5,52,000 का आपने एक तरह से निफ्टी बाई कर लिया है. मार्केट एक्सपोजर जो मैं बोला था, हेज फंड्स आर स्ट्राइविंग फॉर अल्फा नॉट फॉर बीटा. बट पता नहीं लेवल 1 का किसको याद होगा, जो रिसेंटली लेवल 1 दिया होगा उसको याद होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है लेवल 1 में कि इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी दे परफॉर्म वेल इन राइजिंग मार्केट्स. इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज दे परफॉर्म वेल इन राइजिंग मार्केट्स. यूजुअली उनका नेट बीटा एक्सपोजर पॉजिटिव होता है. प्लस ये जो इवेंट्स है ना, मर्जर्स, एलबीओ वगैरह, ये सब राइजिंग मार्केट्स में ज्यादा होते हैं. ओके ये जो प्राइवेट इक्विटी डील्स है, एलबीओ है, मर्जर्स है, ये सब राइजिंग मार्केट में ही ज्यादा होते हैं, रिसेशन में नहीं होते हैं. किसको याद है क्या? लेवल 1 में ये मल्टीपल चॉइस है कि व्हेन डू इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज परफॉर्म वेल? They perform well during rising markets. I don't know how many of you remember, खासकर जिन्होंने अगस्त में एग्जाम दिया है, there is a scope of their remembering. Event driven strategies are positive beta, positive market beta exposures to some extent. Okay, जिन्होंने अगस्त में दिया उनको शायद ध्यान होगा. जिज्ञासा बोल रही है yes sir I remember. Deepika is saying yes sir we remember. तो 5,52,000, 5,52,000 इसको हेज करना है. हेज तो जाहिर है S&P को बाई करे कि सेल करे. इसको अगर हेज करना है, ऑलरेडी अपना लॉन्ग पोजीशन है, तो S&P को बाई करे कि सेल करे. अगर इसको हेज करना है तो S&P को बाई करे कि सेल करे. इसको अगर हेज करना है तो S&P को बाई या सेल? यस प्लीज. इसको हेज करना है, शुड बी बाय S&P और सेल? ऑब्वियसली सेल. शॉर्ट करेंगे. एक S&P का वैल्यू 4,200 इंटू 50 है. एक कॉन्ट्रैक्ट अगर S&P का बेचेंगे तो 4,200 इंटू 50 कितना? 4,200 इंटू 50 हाउ मच? कितना? 210 आ रहा है क्या? एक S&P को सेल करेंगे तो 210 है शायद. एक S&P का वैल्यू 2,10,000 है क्या? 4,200 इंटू 50 2,10,000. 2,10,000. तो हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सेल? सो हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सेल? 5,52,000 डिवाइडेड बाय 2,10,000. 5,52,000 divided by 2,10,000. 5,52,000 divided by 2,10,000. 5,52,000 divided by 2,10,000. 2.6285. 2.6285 यानी कि 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे बिकॉज फ्रैक्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अलाउड. 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे 2.6285 यानी 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे. आई होप किसी का ये डाउट नहीं है कि सर 2 कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं सेल करेंगे, 3 कॉन्ट्रैक्ट क्यों? 2.6285 अलाउड नहीं है तो कितना कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे? 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे. 2.6285 कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड नहीं है तो हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी शॉर्ट? 3 कॉन्ट्रैक्ट्स. क्लोजर राउंडिंग ऑफ. ना हमें अंडर हेज करना है ना हमें ओवर हेज करना है. हमें करना ही पड़ा अंडर हेज ओवर हेज तो क्लोजेस्ट हेज करेंगे. 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे S&P 500 का. 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे. 3 कॉन्ट्रैक्ट्स वी विल सेल. ठीक है, टू हेज द सेम. और बोल रहा है 10% S&P गिर गया. 10% S&P गिर गया तो स्काईपोर्ट भी गिरा होगा, नॉर्थविंड भी गिरा होगा. लेट्स सी. Question 7. Using post announcement prices for dollar exposure, the net dollar beta
ऑफ द पोजीशन इज क्लोजेस्ट टू। नेट डॉलर बीटा क्या आया था? 5,52,000 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी, नेट डॉलर बीटा 5,52,000 पॉजिटिव। अपना नेट डॉलर बीटा था 5,52,000 पॉजिटिव। नेट डॉलर बीटा वाज 5,52,000 पॉजिटिव। नेट डॉलर बीटा 5,52,000 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, mini S&P futures at 4200 lot size of 50 to neutralize the market exposure. Miguel should most appropriately buy 3 contracts, sell 3 contracts, sell 2 contracts. Which should be the answer? Option number B, sell 3 contracts, closest rounding off. Sell 3 contracts, closest rounding off. Sell 3 contracts. बाप रे, और क्वेश्चन आया ही नहीं है। चैट जीपीटी धोखा दे दी है। ओके, इसका और भी क्वेश्चंस होगा, इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड होगा, वो मैं वर्बली डिस्कस कर ले रहा हूं, और वर्बली डिस्कस करके बाकी क्वेश्चंस मैं आप लोग को शेयर करके ये फाइल शेयर करूंगा। आई होप मेरे डिस्कस करने के बाद आप बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई करना चाहेंगे। इज इट और इज इट नॉट? बाकी क्वेश्चंस आया नहीं है, चैट जीपीटी थक गया, तो बाकी क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, और डिस्कस किया हुआ रहेगा, फाइल में रहेगा, और आप अपने आप ट्राई करेंगे। एक्सप्लेनेशन विल बी देयर। आई होप इट इज ओके विथ यू। आई होप इट इज ओके विथ यू। इज इट फाइन? इज इट फाइन? एवरीबडी सेइंग यस इट्स फाइन। तो सुनना, डिस्कस करना जरूरी है, बिकॉज नॉलेज है उसमें। अगर मार्केट 10% गिरा, अगर मार्केट 10% गिरा, तो इन दैट केस अपना प्रॉफिट क्या होगा? अज्यूमिंग मर्जर सक्सीड्स, अपना प्रॉफिट क्या होगा, माने लॉस क्या होगा अज्यूमिंग मर्जर फेल्स। क्वेश्चन था, अगर मार्केट 10% गिरा तो व्हाट विल बी आवर प्रॉफिट इफ मर्जर सक्सीड्स, एंड व्हाट विल बी आवर लॉस इफ द मर्जर फेल्स। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? हमने मर्जर आर्बिट्राज लगा दिया, उसके बाद मर्जर सक्सीड हुआ या मर्जर फेल हुआ, और उस समय तक मार्केट गिर गया 10%, तो पूछ रहे हैं मर्जर सक्सीड हो गया तो पता लगाओ क्या प्रॉफिट हुआ, और मर्जर फेल हुआ तो पता लगाओ कितना लॉस हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? और ये भी 2 बार निकालने हो सकता है, एक हेज्ड पोजीशन में, एक अनहेज्ड पोजीशन में। तो हेज और अनहेज में तो माथा पच्ची ज़्यादा करना नहीं है, बिकॉज आप लोग को समझ में आ गया कॉल पुट है या नहीं है, तो क्या करना है, करेक्ट? ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सुनो प्लीज। अगर मार्केट 10% गिरा तो जो निफ्टी फ्यूचर सेल किए थे उस पर प्रॉफिट होगा। आई थिंक अपने 5,52,000 का निफ्टी फ्यूचर सेल किए थे, तो इफ द मार्केट फॉल्स बाय 10%, 5,52,000 का 10% प्रॉफिट, 5,52,000 का 10% प्रॉफिट, 55,200 का प्रॉफिट। आपने शॉर्ट किया था ना निफ्टी फ्यूचर्स, तो अगर मार्केट गिरा तो 55,200 का प्रॉफिट। ये क्लियर है? आपने शॉर्ट किया था निफ्टी फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स, तो अगर मार्केट गिरा तो फ्यूचर्स पे 55,200 का प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? फ्यूचर्स पे 55,200 का प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? क्लियर? एंड अगर मर्जर सक्सीड हो गया, मर्जर सक्सीड हो गया, तो उस केस में तो शेयर प्राइस से मतलब ही नहीं है, दोनों कंपनीज का शेयर प्राइस से मतलब ही नहीं है। नॉर्थविंड का शेयर मैंने बाई कर लिया था, मैं वो सबमिट करूंगा, मेरे को सॉरी किसका, स्काईपोर्ट का शेयर बाई कर लिया था, वो मैं सबमिट करूंगा, मेरे को नॉर्थविंड का शेयर मिलेगा, उससे शॉर्ट सेल कवर करूंगा, तो शेयर प्राइस इररिलेवेंट। अगर मर्जर सक्सीड हो गया तो उस केस में स्काईपोर्ट का शेयर प्राइस बाद में क्या होगा, नॉर्थविंड का शेयर प्राइस बाद में क्या होगा, वो इररिलेवेंट है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, केवल 55,200 का एक्स्ट्रा फायदा होगा बिकॉज मार्केट गिर गया। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? ओ सॉरी, हाँ गलती हो गया मेरे से, हर्षित मोदी सही बोल रहा है, कैलकुलेशन 552 पे नहीं होगा, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पे होगा। यस आई मेड अ मिस्टेक, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स था ना,
3 कॉन्ट्रैक्ट्स था, आपको याद है? थैंक यू हर्षित। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स था, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स तो अपना 2,10,000 इंटू 3 6,30,000 का था। थैंक यू हर्षित। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स था तो 2,10,000 इंटू 3 6,30,000 का फ्यूचर सेल किए थे। वेरी गुड, 6,30,000 का फ्यूचर सेल किए थे, तो मार्केट 10% गिरा तो 63,000 का प्रॉफिट। मार्केट 10% गिरा तो 63,000 का प्रॉफिट, ठीक है ना? और शेयर प्राइस से मतलब ही नहीं है, मर्जर अगर सक्सीड हो गया तो। क्लियर दीपिका? दीपिका हैज बिकम माय बेंचमार्क फॉर टुडेज क्लास। 6,30,000 का 10% बिकॉज शॉर्ट किए थे, तो 63,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा मर्जर सक्सीड हो गया तो। दीपिका फटाफट बोल दो, इज इट ओके? 3 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 2,10,000 का 8 कॉन्ट्रैक्ट था। यस दीपिका इज ओके। ओके, तो इन दैट केस अब बात करते हैं मर्जर फेल हो गया तो। ठीक से सुनना, क्या करेंगे? मर्जर फेल हो गया तो तुम लोग को याद है शेयर का दाम स्काईपोर्ट का 60 था, मर्जर फेल होने से दाम शायद 40 हो रहा था क्या? इफ यू रिमेंबर, आप लोग तो लिखे भी थे, पोस्ट अनाउंसमेंट दाम 60 था, बाद में 40 हो रहा था क्या? प्लीज चेक। 48 था, 48, ठीक है 48। तो सुनो ठीक से, तो मर्जर फेल हो गया तो सर यूनिक फैक्टर्स के कारण शेयर का दाम 48 होना चाहिए, 60 से 48, वो तो पहले भी जानते थे। बट मार्केट 10% गिरा है तो 10% शेयर का दाम गिरेगा। सॉरी 10% इंटू 2.2, बीटा क्या है? 10% इंटू 2.2, देखा 22% शेयर का दाम और गिरेगा। स्काई पोर्ट में अपने जोर से लुटेंगे कि सर 60 से 48 तो होना चाहिए बिकॉज मर्जर फेल हो गया, और 10% इंटू 2 22% शेयर का दाम और गिरेगा, 22% शेयर का दाम और गिरेगा, तो 60 से 48 होगा, एंड 10 इंटू 2.2 22% और गिरेगा। बीटा का मतलब तो जानते होंगे ना, मार्केट 1% चेंज होता है तो स्टॉक 2.2% चेंज होता है, तो मार्केट 10% गिरा तो स्टॉक 22% गिरा, ठीक है? और शुरू से गिराते हैं, शुरू का प्राइस क्या था? 60 का 22%, 60 का 22% बताओ, 60 का 22%, 60 13.2 दाम और गिरेगा, तो 48 माइनस 13.2, 48 माइनस 13.2 34.8, 48 माइनस 13.2 34.8, 48 माइनस 13.2 48 बिकॉज मर्जर फेल हो गया, एंड 13.2 बिकॉज मार्केट गिर गया, 34.8 शेयर का दाम हो जाएगा। ओके, 60 से 48 बिकॉज मर्जर फेल हो गया, और 13.2 बिकॉज निफ्टी गिरा, तो इन दैट केस 34.8 शेयर का दाम हो जाएगा। मैसिव लॉस, मैसिव। ओके, और आप जाहिर है उस पर निकाल लोगे, उसमें आप निकाल लोगे, मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, आप दिमाग लगा के निकाल लोगे। ये मेरे से फाइट मत करना कि सर 22% किस पे लगेगा, 60 पे या 48 पे, बिकॉज इसका कोई मैथ्स कहीं पे अनाउंस नहीं है। वो जो 22% बोल रहे हैं ना, वो 60 पे लगेगा कि 48 पे लगेगा, इसका कोई दुनिया में बुक लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? दिस इज माई डिस्कवरी, क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, तो देर इज नो कॉन्फर्मेशन अबाउट इट। डोंट फाइट रिगार्डिंग दैट, ठीक है? डोंट फाइट रिगार्डिंग दैट, नहीं सर इस पे होना चाहिए, ये लॉजिक है, वो लॉजिक है, आपका जो मैंने लॉजिक करते रहो। द पॉइंट वाज टू लर्न, एंड व्हाई डिड आई यूज द क्वेश्चन, आई विल डिस्कस विथ यू कि मैं क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया हूं फॉर द लेवल 2 करिकुलम, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन जो मैंने डाला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है CFA लेवल 2 एग्जाम के लिए, सुनना प्लीज, लिसन। ये जो हेज फंड है जिसने ये स्ट्रैटेजी किया, ये जो हेज फंड है जिसने स्ट्रैटेजी किया, आशीष कुछ पूछ रहा है जोश में आके, कैन यू टेल व्हाई ही डोंट जस्ट बाय ऑप्शंस रादर देन बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग द शेयर्स सो दैट इज पे ऑफ? तो वो तो फिर अलग ही चीज में चलेगे ना आशीष, तो इसका मतलब मैं टॉपिक पढ़ाऊँ ही नहीं। ओके आशीष, मैं टॉपिक से ही बाहर आ जाऊँ। आशीष बोल रहा है सर जरूरत ही क्या उसको टारगेट का शेयर बाई करने का, और क्या बोलते हैं अक्वायरर का शेयर शॉर्ट सेल करने का, वो तो सीधा ऑप्शंस में ही खेल सकता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर सकता है, कोई मना नहीं किया है। कोई हेज फंड अगर वो करना चाहे तो एकदम अलाउड है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वाई का बात ही नहीं है। बट आई हैव टू टीच लेवल 2 का करिकुलम ना, तो सर लेवल 2 के करिकुलम में क्या ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं वो वाला पार्ट है, हेज फंड में है, 100% है। क्या जो मार्केट एक्सपोजर होता है वो वाला पार्ट है? यस है।
क्या डील रिस्क वाला पार्ट है? यस है। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है? यस है, 100% है। तो वो जो थियरी में लिखा हुआ है, जो कुछ समझ में नहीं आता है को रीडिंग में, उसको मैथमेटाइज किए। वो जो थियरी में लिखा हुआ है उसको इंटरनलाइज करवा रहे हैं। ओके, तो आशीष, यू गॉट द आंसर। इफ यू आर द हेज फंड मैनेजर यू कैन डू दैट। यू मे यूज ओनली डेरिवेटिव्स, यू मे यूज ओनली डेरिवेटिव्स। और वैसे आप लोग को पता नहीं होगा, लेवल 1 में बताया नहीं था शायद, जो मैनेज्ड फ्यूचर्स होता है ना, मैनेज्ड फ्यूचर्स इज द ओनली टाइप ऑफ हेज फंड, is the only type of hedge fund which is not allowed to use anything other than derivatives. ये शायद मैंने लेवल 1 में बताया नहीं था। जो मैनेज्ड फ्यूचर्स होता है, नाम तो सुना होगा, that is the only type of hedge fund which is not allowed to use anything other than derivatives. वो सब कुछ कर सकता है, मर्जर आर्बिट्राज भी कर सकता है, पर डेरिवेटिव्स के हेल्प से। It is not regulated by any body, it is regulated by the CFTC. एक अलग रेगुलेटर उसका CFTC, ओके, उसका CFTC, कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर उसका, ओके, मैनेज्ड फ्यूचर्स का, ठीक है। बाकी के सब अंडरलाइंग यूज कर सकते हैं, कैश मतलब शेयर्स, कमोडिटी, बट मैनेज्ड फ्यूचर्स ऐसा है जो केवल डेरिवेटिव्स ही यूज कर सकता है और कुछ नहीं यूज कर सकता है मैनेज्ड फ्यूचर्स। समझ गए? खैर, जब बात करेंगे तो बात करेंगे। आशीष गॉट हिज आंसर। तो कोई भी डाउट से अगर कुछ बोलने का मौका मिलता है ना, मैं डाउट को डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा। बढ़िया डाउट्स डालो सोच सोच के, ठीक है, पर जबरदस्ती नहीं। चल मैं भी कुछ पूछता हूं, बाद में डाल सकते हो ना, ठीक है। अब सुनो ठीक से, एकदम ठीक से सुनना। यहां पे थियरी वाला पार्ट और ये टेस्टेबल एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। केस 1, सर, ये जो हेज फंड है जिसने ये स्ट्रैटेजी किया, वो हेज फंड ने अनाउंसमेंट के पहले ये स्ट्रैटेजी किया, यानी मर्जर अनाउंस नहीं हुआ था, उसने उसके पहले ये स्ट्रैटेजी किया। इज इट पॉसिबल? ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अक्वायर करेगा, ये अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, उसके पहले ही हेज फंड ने ये स्ट्रैटेजी कर दिया, बी को बाय, ए को शॉर्ट सेल। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अनाउंसमेंट के पहले हेज फंड ने ये स्ट्रैटेजी कर दिया। इज इट पॉसिबल मैंने पूछा, रिप्लाईज आर नॉट कमिंग। अनाउंसमेंट के पहले हेज फंड ने ये स्ट्रैटेजी कर दिया। Is it possible? The answer is a big yes. The answer is a big yes. And if it is no, then what did we do last class? जो इंडक्शन क्लास था एथिक्स वाला, जो इंडक्शन क्लास था एथिक्स का, उसमें क्या किया हमने? Let me revise you the last class. There is a firm, fixed income firm, and वो fixed income firm जो है वो एस्टिमेट करता है कौन से फर्म में LBO होगा, कौन सा फर्म LBO टारगेट होगा, एक रिग्रेशन मॉडल से एस्टिमेट करता है, और एस्टिमेट करने के बाद अगर 60% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है, और उसके बाद जाके अनाउंसमेंट के पहले ही वो सौदा मारता है, बॉन्ड्स को शॉर्ट सेल करता है। कल का याद है तो एथिक्स का क्लास, आई एम अज्यूमिंग जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं आज, उन्होंने कल का क्लास किया था, एथिक्स का नहीं किया तो मेजर लॉस। कल का जो क्लास था इंडक्शन क्लास, इफ यू रिमेंबर, वो लोग पहले से एक मॉडल यूज कर रहे थे एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस। वो अलग बात है कि उसी एथिक्स के क्वेश्चन में जो एनालिस्ट था ना, जो भी नाम था उसका सेकंड वाले का, एलेक्सिया व्हाटएवर, वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज के वो कर दिया था, इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज करके, जो कि अनएथिकल था। याद होगा, एस वाज हिज नेम, ओके। वो एस ऋषभ टाटिया को ये याद है, पर ऋषभ टाटिया बोला इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है बिफोर, ठीक है। तो एस ने पहले से कर दिया था, वो तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर दिया था, विच वाज रॉन्ग। बट अदरवाइज जो उसका बॉस था ना, पहले वाला बॉस, बॉसविन, जो बॉसविन था, इंडक्शन क्लास CFA लेवल 2, ब्यूटीफुल आइटम सेट वी डिड, वो तो नहीं किया था जब उसका रिसर्च सेटिस्फाई नहीं किया। तो लोग रिसर्च के बेसिस पे भी करते हैं, और रियल लाइफ में तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बेसिस पे भी करते हैं। सर पर ये तो अनएथिकल है। क्या चीज अनएथिकल नहीं होता है रियल लाइफ में? क्या चीज अनएथिकल रियल लाइफ में नहीं होता? कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने फ्री में PSM, जिन्होंने फ्री में सॉरी क्या बोलते हैं, एडिशनल प्रैक्टिस पैक नहीं यूज किया है, जिन्होंने परचेस किया है? कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? नाम नहीं लूंगा, हाँ नाम तो ले सकता हूँ उसका। एडिशनल प्रैक्टिस पैक जिसने परचेस किया है CFA लेवल 1 का, कोई है ऐसा? शेयरिंग में परचेस किया है तो मत बोलना सर मैंने 200 रुपया दिया था, शेयरिंग में परचेस किया था। जिसने पूरा पैसा देख के CFA इंस्टीट्यूट से परचेस किया, बताओ कोई है? तो कोई है ऐसा?
जिसने एडिशनल प्रैक्टिस पैक CFA लेवल 1 का पूरा पैसा दे के CFA इंस्टीट्यूट को परचेस किया है? अगर है तो उसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, कोई नहीं है। तो प्लीज डोंट टॉक अबाउट एथिक्स, ओके, डू नॉट टॉक अबाउट एथिक्स एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्कोरिंग फुल मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है ना। सो डोंट टेल मी दैट्स पर एथिक्स के बेस पे तो कर नहीं सकता है। कर क्या नहीं सकता है, किया और पकड़ा नहीं गया तो अलग बात है ना, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप करते हैं पहले से और अगर आप सक्सीड कर जाते हैं तो इन दैट केस आपको ज़्यादा फायदा होगा या कमती फायदा? प्री अनाउंसमेंट के बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा कि कमती फायदा हो गया और सक्सेसफुल हो गए? आपने प्री अनाउंसमेंट के बेसिस किया एंड मर्जर हो गया तो उस केस पे ज़्यादा फायदा होगा या कमती फायदा होगा? ज़्यादा फायदा, और लॉस भी कम होगा। ज़्यादा फायदा होगा और लॉस भी कम होगा, जानते हो, डबल। risk reward ratio will be beautifully improved because there is a great reward in the first mover advantage. तो जो लोग क्लास 12 के बाद अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में CFA प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, उन लोग का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है उनको, उनके करियर वाइज। एनीवेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कैटलिस्ट। व्हाट? सॉफ्ट कैटलिस्ट। कोई मॉडल था, मोज़ेक थियोरी था, वो यूज करके आपने किया प्री अनाउंसमेंट, और अगर आपने आफ्टर किया तो उसको बोलते हैं हार्ड कैटलिस्ट। अनाउंसमेंट के बाद किया तो उसको बोलते हैं हार्ड कैटलिस्ट। सॉफ्ट कैटलिस्ट, हार्ड कैटलिस्ट। सॉफ्ट कैटलिस्ट मीन्स समथिंग वाज ऑब्जर्व्ड which was public information, yeah, which was non-material, non-public information. Okay, we joined the same, combined the same mosaic theory, and we thought that merger will take place, and we did it. Mosaic theory totally allowed. That is soft catalyst. और hard catalyst क्या? announcement के बाद we took the risk. That's hard catalyst. ये पूरा का पूरा merger arbitrage strategy है, ठीक है। Now let's me tell you, सर क्या इस तरह से CFA लेवल 2 में आइटम सेट्स आएगा जो आपने दिया है? इस तरह से तो नहीं आएगा, क्योंकि CFA इंस्टीट्यूट कैलकुलेट का कमांड वर्ड नहीं दिया है। सिंपल कैलकुलेशन कहीं पे जरा सा पूछ सकता है, जरा सा सिंपल सा, बट दिस वाज टू मच कैलकुलेशन। तो हेज फंड से ऐसा नहीं आएगा। पर देन प्लीज रिक्वेस्ट है, आज एक बार राइटअप रीड करना, मर्जर आर्बिट्राज का जो कैरेक्टरिस्टिक समझाया हुआ है उसका एक बार राइटअप रीड करना, एक बार रीड करना, और छोड़ो कोर रीडिंग, कहीं और से रीड करना, कहीं और से। लिटरेचर और मर्जर आर्बिट्राज, एक्सप्लेन मर्जर आर्बिट्राज डीपली, एक्सप्लेन मर्जर आर्बिट्राज डीपली, और रीड करना, या तो कोर रीडिंग से जहां से भी, एंड यू विल फाइंड दैट द लैंग्वेज वुड बी सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो क्या क्या बोल रहा है, नहीं बट ये रिस्क है, बट ये होता है, बट वो है, सारा इंग्लिश में बोल रहा है, ये मैथ्स जो किए हैं। तो अगर खुल के समझना है तो न्यूमेरिकल सपोर्ट लेना पड़ता है, अंडरस्टूड। उसके बाद जाके वो जो पूछेगा थियरी, दैट्स गोइंग टू बी पीनट्स, बिलीव मी, ओके, दैट्स गोइंग टू बी पीनट्स। सो एनीबडी हु डिड नॉट लाइक द नंबर्स, कि सर मेरे को इतना मैथ्स पसंद नहीं, नो इश्यूज। एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू इट, यू आर एबल टू मास्टर the theory stuff which is given in the book. The theory stuff which is given in the book you are able to master. And at the risk of sounding asking a stupid question, let me ask, क्या इस तरह से लेवल 1 में कराना चाहिए था? क्या इस तरह से लेवल 1 में कराना चाहिए था? At the risk of asking a stupid question, let me ask, क्या इस तरह से लेवल 1 में कराना चाहिए था? देखता हूं आंसर क्या है। जो भी आंसर दे रहे, यस, द आंसर इज अ बिग नो। दैट मीन्स यू मीन टू से दैट हेज फंड का जो लेवल 2 का स्टफ है वो अपने लेवल 1 में भी कर लेते, और लेवल 1 में जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो भी कर लेते, और हेज फंड में अपने करीब 60-70 आवर्स का क्लासेस करते। L1 वाला स्टफ भी, L2 वाला स्टफ भी है ना। बोलना बहुत आसान है, समझो, ओके, बोलना बहुत आसान है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनीबडी कि वहां हेज फंड का आइडिया था सर, वो आइडिया दिया आपने, और यहां पे आपने उसको खोल के बताया बिकॉज स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। तो यू विल थिंक अबाउट इट, ठीक से जिन्होंने यस यस बोला, यू विल कंक्लूड दैट नहीं पॉसिबल है। लेवल 2 में क्या करेंगे, फिर सब L1 में कर लेंगे कि L1 में ब्लैक शोल्स मॉडल ही बताए थे खोल खोल के, ठीक है ना। सो इट डजंट हैपन दैट वे। सो दैट वाज मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड टुडे? नंबर 1, इफ यू रिमेंबर द स्टफ, द मेन पॉइंट्स वाज
hedge funds are supposed to provide alpha, not beta. Now suppose there is a hedge fund, सुनना please, question पूछ रहा हूँ, who takes a long position in stocks, long position in diversified portfolio of stocks, diversified portfolio, Nifty में long position, but leverages itself 5:1, leverages itself 5:1, 5:1 मतलब अगर $1 billion का फंड है तो $5 billion इन्वेस्ट कर रहा है, $4 billion का डेट लेके. देयर इज अ हेज फंड जिसने $1 billion का कॉर्पस कलेक्ट किया और उसके बाद $5 billion निफ्टी में लगाया, निफ्टी का पोर्टफोलियो में लगाया, मार्केट बढ़ा तो द म्यूचुअल फंड विल गिव अ हायर रिटर्न. जो इंडेक्स फंड है ना निफ्टी का, दैट विल गिव अ हायर रिटर्न, और द हेज फंड विल गिव अ हायर रिटर्न. विच विल गिव अ हायर रिटर्न? मार्केट बढ़ गया तो द म्यूचुअल फंड विल गिव अ हायर रिटर्न और द हेज फंड विल गिव अ हायर रिटर्न. हेज फंड विल गिव अ हायर रिटर्न, फिनोमिनल रिटर्न, फाड़ देगा, फाड़ देगा. अगर मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया तो म्यूचुअल फंड विल गिव अ लोअर रिटर्न या हेज फंड विल गिव अ लोअर रिटर्न. अगर मार्केट गिर गया तो म्यूचुअल फंड विल गिव अ लोअर रिटर्न और हेज फंड विल गिव अ लोअर रिटर्न. हेज फंड विल गिव अ लोअर रिटर्न. ऑब्वियस है, बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा हेज फंड. मैंने जो बोल दी है इस केस में 5:1 में. तो सर ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है बताना. इसका मतलब सर अगर मेरा फोरकास्ट है कि मार्केट बढ़ने वाला है, अगर मेरा फोरकास्ट है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो अपने को आपके एग्जाम्पल में हेज फंड में पैसा लगाना चाहिए. अगर मेरा फोरकास्ट है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो आपके एग्जाम्पल में हेज फंड में पैसा लगाना चाहिए. ट्रू या फॉल्स? सर अगर आपका फोरकास्ट है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो हेज फंड में पैसा लगाना चाहिए. ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सबका आंसर रॉन्ग है. आंसर इज फॉल्स. आंसर इज फॉल्स बिकॉज अगर तुमको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो उस केस में एक काम करो ना, खुद लेवरेज ले लो, खुद पैसा बोरो कर लो और खुद का पैसा बोरोड किया हुआ और अपना खुद का पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो. अरे तुम बोरो कर लो, 4 लाख रुपया बोरो कर लो, 1 लाख रुपया खुद का और 5 लाख म्यूचुअल फंड ETF में लगा दो. निफ्टी 20, 1 लाख खुद का और 4 लाख बोरोड, 5 लाख निफ्टी 20 में लगा दो. थिंक अबाउट इट. अरे क्यों फीस देंगे उसको? Why will we pay 2/20? Why will we pay 2/20? फीस को मत भूलना हेज फंड में. You are going to pay him 2/20. तो we will pay 2/20 such a high fee structure to somebody who is going to provide beta return or alpha return. Beta return is something that we can cheaply ETF के through manufacture ourselves. Why would we give hedge fund high fees फॉर बीटा रिटर्न? नहीं नहीं सर पर रिटर्न ज्यादा दी है. अरे रिटर्न क्या चीज का दी है? जो चीज हम अपने आप कर सकते थे सस्ते में, जो चीज मैं अपने आप कर सकता था सस्ते में. इफ आई एम टीचिंग यू और ऐसे पढ़ा रहा हूं जो कि तुम खुद ही पढ़ सकते थे अपने आप. एक पावर पॉइंट स्लाइड चला रहा हूं, यहां पावर पॉइंट स्लाइड या स्क्वाइजर का बुक खोल लिया हूं और उससे रीड कर रहा हूं. यू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ इट शुड बी डन. ओके नाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ एंड आस्क मी डाउट्स. या पीपीटी पढ़ा रहा हूं तो व्हाट एम आई चार्जिंग फीस फॉर? यू कैन डू इट योरसेल्फ. You can do it better through GPT. So ये चीज पता नहीं स्टूडेंट लोग बोलने से बैठा लेते उस समय पर, वो लोग बैठता नहीं है. मतलब वो होता है ना अंदर में बैठना. अंदर में बैठने का मतलब है hedge funds are supposed to provide alpha not beta. जो बंदा फैक्टर एक्सपोजर्स लेता है, वैल्यू, साइज, मोमेंटम, मार्केट, और उससे रिटर्न देता है, उसको एक थप्पड़ मारना चाहिए कि वह हेज फंड के नाम पे कलंक है. ही इज डूइंग क्लोजेट इंडेक्सिंग. इनफैक्ट दैट्स कॉल्ड स्मार्ट बीटा. व्हाट इज स्मार्ट बीटा? स्मार्ट बीटा मतलब आपने किया था लेवल 1 में स्मार्ट बीटा इन दैट चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में. स्मार्ट बीटा इज अ रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी. रूल्स बेस्ड याद आ रहा होगा मल्टीपल चॉइस में. स्मार्ट बीटा रूल्स बेस्ड, जो कि डिफरेंट फैक्टर एक्सपोजर्स लेता है ऑन अ रूल्स बेस्ड बेसिस. तो वो कोई हेज फंड नहीं है. उसको लगा स्मॉल कैप बेटर परफॉर्म करेगा
ठीक है, उसको लगा मोमेंटम बेटर परफॉर्म करेगा, अकॉर्डिंगली उसने उसमें एक्सपोजर ले लिया, दैट इज स्मार्ट बीटा। हो सकता है हायर रिटर्न देगा, बट दैट इज नॉट हेज फंड। हेज फंड इज सपोज टू प्रोवाइड मी returns which are uncorrelated to market. I don't want him to provide me the same factor exposures which I can get cheaply without fees ETF के through. That is the center stage. Hedge fund का only role in the portfolio is diversification, diversification, diversification. Hedge fund का role in the portfolio is to stabilize the portfolio. हेज फंड का रोल इन द पोर्टफोलियो इज टू हैव लोअर मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ये नहीं बोल रहा हूं हेज फंड का लोअर ड्रॉडाउन होता है, बट हेज फंड के कारण पोर्टफोलियो का लोअर मैक्सिमम ड्रॉडाउन होना चाहिए। हेज फंड का पर्पस हाई रिटर्न्स देना नहीं है, चाहे वो रिटर्न्स नॉर्मल दे पर वो मार्केट से अनकोरिलेटेड रहे। दिस वाज द जेनेसिस ऑफ हेज फंड, दिस वाज द जेनेसिस ऑफ हेज फंड। एंड इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग, लुक एट द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ ओवर हियर। एक बार ग्राफ देखिएगा, मेरे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप खुद भी एक बार ये ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा, बट डू इट लेटर, ओके, डू इट लेटर। आफ्टर आई हैव ड्रॉन द ग्राफ, देन यू ड्रॉ द ग्राफ लेटर ऑन, बट डोंट ड्रॉ विथ मी, ओके, जस्ट गिव मी द टाइम टू ड्रॉ द ग्राफ। Okay, I'll take my own time. 1997 से ग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं, 1997 से ग्राफ, टू थाउजेंड, इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा, फिर भी मैं वो कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ टू रब इट ऑफ। मेरा वाइट बोर्ड ही ठीक था, जस्ट लेट मी स्विच टू द वाइट बोर्ड सो डैट आई कैन जस्ट डू इट कंफर्टेबली। और इसमें वाइट बोर्ड है नहीं, आई हैव टू गो बैक टू इट, ठीक। आई डेंट मीन टू मेक दिस वन, व्हाट आई मेंट इज दैट ईयर 2000 तक, ईयर 2000 तक जो S&P 500 है वो ऊपर गया, हेज फंड ऊपर गया 2000 तक। डोंट ड्रॉ द ग्राफ बिकॉज मैं ग्राफ शेयर कर दूंगा अच्छे से। 2000 से लेके 2003 तक S&P गिरा, याद है ना, .com बबल जोर से गिरा, हेज फंड बढ़ा। इसको बोलते हैं वाह। देखो ये वाला पीरियड 2000 से 2003 तक हेज फंड दिल जीत लिया, बिकॉज .com बबल के बाद द एंटायर मार्केट कोलैप्स्ड बट हेज फंड वेंट अप। ब्यूटिफुल, इसी दिन के लिए तो हेज फंड बना था, ओके, इसी दिन के लिए हेज फंड बना था कि देखो वो अपना नॉर्मल रिटर्न दे रहा है, हेज फंड का इंडेक्स बढ़ रहा है। हेज फंड का इंडेक्स होता है, मैं इंडेक्स प्लॉट कर रहा हूं, S&P 500 प्लॉट कर रहा हूं, इंडेक्स प्लॉट कर रहा हूं, तो हेज फंड बढ़ा। वाई? बिकॉज वो मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी यूज कर रहा था, लॉन्ग शॉर्ट, उसका बीटा वर्चुअली जीरो था। उसके बाद हेज फंड हैवी पॉपुलर हो गया, हेज फंड पॉपुलर हो गया और सब जन हेज फंड में भर भर के पैसा डाले। तो S&P 2003 के बाद 2007 तक रिकवर किया, सबको पता है। 2007-8 तक मार्केट रियली वेंट अप, हेज फंड ऑल्सो वेंट अप, हेज फंड ऑल्सो वेंट अप। 2003 से 2007 both went up. In fact, hedge funds took excessive leverage. They went up more. Exactly वही हुआ 5:1 वाला। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में S&P फेल, ऑब्वियसली। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हेज फंड फेल, वेरी बैड। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008। I'll draw the graph and give it to you, huh? Don't worry, don't draw it please, गंदा मत करो।
अंडरस्टैंड द क्रक्स। 2000 से 2003 का जो फॉल था उसमें हेज फंड बिहेव लाइक हेज फंड, बट 2008 के बाद जो फॉल था उसमें हेज फंड डिड नॉट बिहेव लाइक हेज फंड। वाई? बिकॉज जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा पैसा, तब सारे जन खड़े हो जाते प्लेकार्ड से, मैं भी हेज फंड हूँ, मैं भी हेज फंड हूँ। जो म्यूचुअल फंड थे वो लोग भी हेज फंड खोल लिए। एवरी टॉम डिक हैरी ऑन द मार्केट प्लेस स्टार्टेड हेज फंड। वाई? बिकॉज लोग हेज फंड ढूंढ रहे थे ना, पैसा कहाँ लगाएं, तो एवरीबडी स्टार्टेड द दुकान एंड देयरफॉर they did not do what hedge fund is supposed to do. They did not have the quality of stock selection. Stock selection का दम, market timing का दम नहीं था. They did not do all that. They just did what mutual fund are doing. इसको बोलते छुपा रुस्तम. We call it closet indexing. Closet indexing, छुपा रुस्तम. जो कर रहा वही है जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, ठीक है, बट छुप के कर रहा है, बता रहा नहीं है। मैं बताऊंगा नहीं अपना स्ट्रैटेजी, और फीस खा रहा है 2/20। सोचो, ठीक है, बहुत बदनाम हुआ है हेज फंड इस पीरियड में। और फंड ऑफ हेज फंड तो और जोर से बदनाम हुआ। 2011-12 में फंड ऑफ हेज फंड जोर से गिरा, जबकि 2011-12 तो बढ़िया पीरियड था मार्केट के लिए, बिकॉज उन्होंने एक पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाया। तो काहे का ड्यू डिलिजेंस? वो लोग बोलते हैं हम लोग आपके लिए ड्यू डिलिजेंस करेंगे, बट व्हाट, वेयर इज द ड्यू डिलिजेंस इफ यू आर पुटिंग इन पॉन्जी स्कीम? आई डोंट रिमेंबर द पॉन्जी स्कीम, बहुत बड़ा पॉन्जी स्कीम हुआ था उस समय, सम मुर्दोक और व्हाटएवर का, उस समय देयर वाज अ मेजर पॉन्जी स्कीम एंड फंड ऑफ हेज फंड हैड इन्वेस्टेड इन दैट। तो हेज फंड्स हैव गॉन थ्रू अ वेरी वॉलेटाइल पीरियड। व्हेनेवर लोगों का अट्रैक्शन हेज फंड की तरफ बढ़ा है ना, उसके बाद हेज फंड का परफॉर्मेंस खराब हुआ है। या बर्नी मेडॉफ करेक्ट बोला मोहित अग्रवाला, ठीक है, उसमें फंड ऑफ हेज फंड ने जोर से इन्वेस्ट किया था पॉन्जी स्कीम में, ठीक है। तो दी स्टोरीज आर नॉट दैट दे विल बी टेस्टेड इन द एग्जाम। बता 2000 से 2003 में क्या हुआ था, बता 2003 से 2007 में क्या हुआ था, बट विदाउट देम हाउ डू यू गेट दैट टॉपिक इनटू योर हेड? Understood? So hedge funds strive for alpha. They are there for to provide uncorrelated returns, diversification. Okay? तो अपने किए डिस्कशन अबाउट द फादर ऑफ हेज फंड जोन्स, वी डिस्कस अबाउट सिटाडेल ग्रिफिन जो कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज किया था। देन वी एंटर्ड इनटू एन आइटम सेट ऑन मर्जर आर्बिट्राज, उसको तो खोल दिए पूरा मर्जर आर्बिट्राज को। एंड देन फाइनली वंस अगेन आई न्यू दैट आप लोग थोड़ा मिस्टेक करेंगे जब मैं खोद के पूछूंगा, तो यू डिड द मिस्टेक बोलने में कि सर अगर मार्केट ऊपर बढ़ने वाला है तो 5 टाइम्स लेवरेज वाला हेज फंड में इन्वेस्ट करेंगे। नहीं करेंगे, खुद से कर लेंगे लेवरेज, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लास ऑन हेज फंड। एनीबडी हु फील्स दैट सर आपके क्लासेस थोड़े टफ होते हैं और मैं पहले से को रीडिंग से रीड करके आऊँगा, आप बता दिया कीजिए आप क्या कराएंगे, तो इन दैट केस हेज फंड का चैप्टर रीडिंग करना चालू कर दो। क्या लैंग्वेज लिखा हुआ, बाप रे बाप, इट इज हाइट्स ऑफ टफ लैंग्वेज, एंड क्या डेप्थ लिखा हुआ है। दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज लेवल 3 का स्टफ लेवल 2 में डाला है, ठीक है ना। जो मैंने मैथमेटिकली एग्जाम्पल दिया वो नहीं आ सकता एग्जाम में, बट उसका एग्जाम्पल के अंदर का पूरा पार्ट है, पढ़ लेना जाके। तो क्या बोलेगा ना सर समझे कैसे इसको, तो ऐसे समझे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास. I hope you enjoyed the class. This was the first class of hedge fund. This will go on YouTube. The question will also be shared on YouTube with the entire extra questions. Okay, because we want to promote ourselves. Why do we want to promote ourselves? To earn more. Okay, but at the same time we want to provide the best education to everybody. Anybody who is not studying CFA like this, he should better not study the CFA program at all. अगर इस तरह से CFA नहीं स्टडी कर रहा है तो बेटर है CFA प्रोग्राम पढ़े ही नहीं। ओके, वही CA BCom ये सब ज्वाइन कर ले। मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने का तरीका, गो फॉर डेप्थ, ठीक है। सो आई सी यू ऑन ट्यूसडे एंड वहां पे प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का लेआउट क्या है, टुडे लेआउट वाज नॉट देयर, दिस वाज वार्म अप, दिस वाज वार्म अप, नथिंग हैज बीन डिक्टेटेड। दिस आइटम सेट विल बी शेयर्ड विथ यू, ओके, एन ऑडियो समरी विल बी शेयर्ड विथ यू, दिस ग्राफ एंड ऑल विल बी शेयर्ड विथ यू ऑन द ड्राइव ग्राफ, ठीक है, वो शेयर होगा आपसे ड्राइव पे, और हो सकता है कुछ समरी राइटअप में शेयर करूंगा, ठीक है, आज के क्लास का जो बोला हूं मैं, बिकॉज आई कांट डिक्टेट 1949 में जोन स्टार्टेड hedge fund and all that. Okay, Deepika Rawat is wishing happy Diwali. Thank you Deepika, because we would have forgotten. इस जोश में दिवाली को भूल ही जाते. Happy Diwali to all of you. What the festival represents, okay, happiness and joy and family and bonding. It is a great privilege for me
for those of you who believe me to be your family, okay, at least a quasi family, I believe the same for you. I leave no stones unturned to ensure that we have a one-time exposure to CFA level 2. We pass it with flying colors. Okay, thank you and happy Diwali to all of you. See you on Tuesday 8 p.m. for the next class, class number 2 of hedge fund. Thank you.